तो लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन देखा था, लाप्लास इक्वेशन, कि कैसे फ्लो जो है, सीपेज फ्लो, वो डिस्क्राइब करता है। खोसला ने डिस्क्राइब किया है कि ये जो सीपेज फ्लो है वो लाप्लास इक्वेशन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड इसका सोल्यूशन जो है, जो लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन है, आपको करना नहीं है, केवल समझना है। बहुत सारी चीजें आपके इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा करने का नहीं होता। कुछ एक चीजें हम मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा, और फिर आगे उसके जो दूसरे इजी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो लाप्लास का इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी सॉल्यूशन या ग्राफिकल सॉल्यूशंस, वो that require a lot of work, tedious work and computational efforts. तो ये बहुत डिफिकल्ट था उस जमाने में सारा का सारा सोल्व करना। तो उन्होंने लाप्लास इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जिससे कि हम सीपेज पता चल सके, ब्लिक का हमें पता चल गया था कि उसने इजी मेथड ले लिया था एल मेजर करने का, क्रीप लेंथ मेजर करने का। लेकिन यहाँ पे क्रीप लेंथ मेजर नहीं हो रही, तो फाई उन्होंने एक ऐसा फ्लो पोटेंशियल दिया कि जो adhere to the base or contact of the floor with the soil. No, that doesn't. So in that case, the solution was given in form of this flow net and represented by streamlines and equipotential line. To draw this graphically and get a graphical solution is also difficult, because we need boundary condition which exist below the ground. कहाँ है और कहाँ है प्रीवियस लेयर मिलेगी, आपको बोर होल्स बनाने पड़ेंगे, जब सोइल का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस करीब करीब 30 फीट है या 40 फीट है, जहां से ये फ्लो हो रहा है। 40 फीट के बाद ये इम्प्रीवियस लेयर मिल रही है, नीचे वाली लेयर जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दैट इज ए बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे ए बी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कांस्टेंट हेड है, दिस इज बाउंड्री कंडीशन। यहाँ ये एग्जिट लाइन है और कांस्टेंट हेड है। देखो पिजोमीटर में जो ऊपर मिल रहा है, तो इसमें भी ये कांस्टेंट हेड है। तो ये बाउंड्री कंडीशन है। विथ रेफरेंस टू दिस बाउंड्री कंडीशन वी ड्रॉ दिस फ्लो नेट, and based on this flow net we compute the seepage flow, seepage output. So seepage output, the amount of water which is seeping through, and that may describe the total head and pressure exerted at the bottom of this floor, which is detrimental if it is not dissipated while it is appearing onto the downstream side of the structure. तो ये डिट्रीमेंटल इफेक्ट इस फ्लो का सीपेज का कम करने के लिए व्हाट वी डू, वी नीड टू लूज दिस हेड, द टोटल हेड अलोंग इट्स पाथ टुवर्ड्स द एग्जिट पॉइंट और डाउनस्ट्रीम पॉइंट ऑफ द civil structure, civil engineering structure. So that is what this equation, that we have mathematical solution, we have electrical analogy solution, we have graphical solution, we may have other computational methods to solve it, but what happened during that time period, say 60-70 years back, 1950s, 30s, I rather say 30s, 100 years almost, 80-90 years. तो कितने साल पहले, उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं थे, थिंग्स वर नॉट सो एफिशिएंट, और अभी भी इतना जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क. They are this method which we are using here in the books, we are studying, or which you are looking at onto the slides, are being used for the design of floor, foundation, and weir and barrage and other hydraulic structure. This is not limited. This is not limited, mind it. This is also very much foundation of the soil mechanics, flow through the soil media formations, and this method, this theory is used there also. Anywhere where there is kind of uplift, there is kind of the seepage taking place, like in the earthen dams also. So this that equation led to this formation of the exit gradient, the critical exit gradient, and self exit gradient, which we discussed last time. I discussed here briefly just to recall the theory last time.
that exit, what is critical exit gradient and what is critical exit gradient and what is safe exit gradient. So what is exit gradient? This head H from here to here, which getting dissipated along its journey towards the downstream. So we calculate the length. If we divide this head by this length, then we get a gradient. So that is simple gradient. At the exit, if we look at the residual head and it divided by residual head, and that residual head, if is in critical position. How will define the critical? Because this force, this seepage is always exerting a force on the soil grains like this, which gets converted its direction upward after the midpoint from here, midpoint from the this point here onwards. So this is like making or loosening the soil particles here. When the water appears here, then the leftover head here should not be in position to remove or take the soil particles, soil grains along with the moving out or oozing out water from this point. So this force, which is detrimental, it should not be more than the saturated weight of the soil W. So at the exit, they are counterbalancing, and if this is little more, then the soil particle will go with the seepage which is coming out at the exit, and the piping will start. So this is leading to a piping phenomena, and later on subsidence of this structure down and the failure of this structure by rupture. So this rupture failure, because of the piping phenomena or undermining through this structure, and that is happening because of this force called the uplift force. Now this F, if is exactly equal to Ws or W, then that is a critical situation where at that point, what happens, that the soil grain or soil particle is just in equilibrium. If we increase the F by delta F, the soil particle will move with the seepage water which is coming out here, and if it is less than that, then it remains stable onto that. Any value above it gives us kind of a safety or safety factor. Safety factor of 4 to 7. 1 by 4 to 1 by 7 has been suggested by Khosla, and if we apply that factor of safety for different kind of soil, singly fine grain and then coarse grain soil, so those, if factor of safety we apply, then we get the safe exit gradient after the structure. This is factor equal to 4 to 5 is used, but for different soils, this factor of safety is used up till even 7. So 1 by 4 to 1 by 5 is for single kind of soil used by the Khosla, and rest we'll see in a tabular format on to other. This is to calculate the critical exit gradient, which we have seen also last time, that these force, the upward force, upward seeping force and saturated weight of soil should be counterbalanced at the critical moment. They should be exactly equal, whereas Ws can be given by gamma W1 minus S and GC or SS minus 1. This is specific gravity, and the F, you can mention this F as F can be written as dP by dl, and P is gamma WH. This is the phi function. Your phi function which we have seen, that KH. K is the permeability of the soil, H is the head, remaining head or residual head. Here it is unit weight of the water times the residual head. This is the pressure gradient. It's not the hydraulic gradient. Hydraulic gradient is dH by dl. So if we
replace substitute value of this P as gamma WH here, then what we get is the DH by DL, and this gamma W cancels out on both sides of this equation. What remains is the hydraulic gradient is 1. Hydraulic gradient should be equal to 1 minus N G minus 1 or SS minus 1. And if we replace the value of the reverse end, that is specific gravity of reverse end is 2.65 approximately, and the void ratio is 0.4. If we put up these values, we get the value 0.99, that is almost equal. So critical exit gradient is equal to 1. This is equation comes out for reverse end. So you should take care of this, that reverse end. What is the value of this? DH by DL is 1. The critical exit gradient. Now we divide by the safety factor of safety as suggested by Khosla, that for this kind of soil singly, coarse sand and fine sand 1.4 to 1.5, 1.5 to 1 by 6, 1 by 6 to 1 by 7, and the whole range of this factor of safety varies between 0.14 to 0.25. And so this is factor of safety applied to 1. It should not be critical exit gradient should be is 1, but that is risky. You can't construct your structure based on critical gradient. You can construct your structure only on the basis of safe exit gradient. So whenever you are doing the design steps while solving the numericals in tutorial and assignments, then or if you are doing a real infrastructure project, you should use the safe exit gradient, not the critical exit gradient 1 as your value at the end, because exit gradient we will calculate based on the equation given by Khosla on later stage, and that should be compared with these values, not with 1. Here we are looking at definition of the exit gradient, which you might have seen in the soil mechanics also. Okay. Now this is very important graph which defies rather the Bliggs theory. This particular graph is like here are two lines shown to you. One is for the Bliggs. This is hydraulic gradient line here. This is Bliggs 1, Bliggs, and here is line for Khosla. This line is for Khosla. Now this is a curvilinear. Khosla's line is curvilinear from here to here. Profile is like this, whereas Bliggs line is straight. And this is the floor of the structure. This is the floor of the structure, or you could say the foundation of the structure. It should not fail. If it fails, your structure is failing automatically. So what we do, we build a strong foundation for our structure, and this foundation, the total length is having the hydraulic gradient line. Hydraulic head or hydraulic gradient is dissipated from 100% to 0 along its length. The meaning of here 100 is that the H value of H is 100%, and gradually it is decreasing, coming to 0. The gradient is coming to 0 here. This value is 0 here, and becoming like safe for the structure. If it is not 0, then it should be within the safe value, safe limit at the exit gradient, at least that much. And what the Bliggs suggested, that this varies linearly. We have seen this in the hydraulic gradient calculation of the Bliggs, that when we design floor, the floor thickness depends upon the remaining head T when we calculate, and the specific gravity of the material that we have seen.
that head divided by GC minus 1. That is what is the value you are value coming out for the thickness of the floor as per Blick, and this is getting reduced continuously. We give thickness at the beginning, we calculate thickness at the center. If total length of the floor is not much, we can calculate at many other places, but these are two critical points where we calculate the floor thickness. So this is what is the pressure. So our pressure head is behaving like this. But what Khosla says that the uplift pressure does not have a straight line, but it behaves like this inverse function of cosine. This inverse function of cosine. This is your uplift pressure P acting on the floor here at the base, uplift pressure. So thickness of the floor should be adequate to resist uplift pressure. The uplift pressure head at any point is given by Khosla is this, and this is a function of inverse cosine. So what is the difference? It says that the pressure in the beginning means before the structure, means upstream of the structure. What we provide on the upstream of the structure, there is lesser uplift as compared, there is more uplift as compared to Blick's theory. Blick has computed lesser uplift pressure on downstream of the structure on the Pakka floor. So thickness in that case on downstream is maybe coming out inadequate, and structure is failing because of inadequate thickness. So this is how the pressure varies, not linearly but inversely of the cosine function. And also this is head HS, and this is seepage head at any point. You could say this at this point, say after say 10 meters after this, what is the head? You could compute from this equation what is the value after say 50% of the floor, then 75% distance, what is the remaining uplift pressure that can be computed. So this is how we should look at that the Khosla theory. Now we could understand that the pressure does not vary linearly, but it varies with a function, inverse cosine function, and it's not linear. And the exit gradient at the end, this was also at here at this point. This is the exit point where your floor ends. This floor is over here. So at this point, we could say this is the exit point where seeping water coming out. This arrow is shown here. So at that point, this exit gradient can be computed in this format. HS by D, mostly this pi is taken this side because there are charts given of 1 by pi root delta. तो जो root delta है उसके charts Khosla ने दिए थे. तो the exit gradient is what? The seepage head divided by D, exit gradient, seepage head divided by D, 1 upon pi root lambda, and lambda is nothing but 1 plus root 1 plus alpha square by 2, alpha is b by d. सिंपल है ये इक्वेशन. लास्ट वाली 2 आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट खोसला की पूरी थियरी में ये 2 इक्वेशन यही रहने वाली है आपकी. तो इससे आप डरना मत, घबराना मत कि क्या क्या आ रहा है, ये ज्यादा कीड़े मकोड़े से दिख रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं. अल्फा का मीनिंग b बाई डी है रेशियो, और जो डेल्टा है आपका ये यहाँ वाला, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी आएगा तो मैं समझाऊंगा क्या आ रहा है. 1 प्लस रूट 1 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर ये है, डिवाइडेड बाय 2 इज डेल्टा, और ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने ली है और ये एग्जिट ग्रेडियंट निकाला है. ये यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि ये b बाई डी रेशियो लेते हैं. b क्या है? b इसकी टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर है, d इज द डेप्थ है जो डाउनस्ट्रीम पाई की, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया और यूज किया एग्जिट ग्रेडियंट पे, जो ब्लिग ने नहीं किया था कि क्यों जरूरत है डाउनस्ट्रीम पाई की. तो उन्होंने न्यूमेरिकली ये प्रूव कर दिया कि हम ऐसा डिजाइन करेंगे जिसमें एग्जिट ग्रेडियंट ऐसा आता है, और ये एग्जिट ग्रेडियंट यदि सेफ एग्जिट ग्रेडियंट से कम है तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ है. तो वी आर यूजिंग डेप्थ एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द डिजाइन. दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लिग एंड खोसला. So we now understand the difference in the theory, that this is more scientific, having broader base compared to Blick. Blick was preliminary for preliminary design.
अभी भी मैं आपको ये बोलता हूं कि ब्लिक की थ्योरी के बेसिस प्रिलिमिनरी डिजाइन किया जाता है, उसके डायमेंशंस फिक्स कर दिए जाते हैं स्ट्रक्चर के, एंड मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिजाइन इज डन विद द खोसला's theory दैट एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ द फ्लोर एंड द लेंथ ऑफ द फ्लोर, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इवन उसमें बेस कितनी होनी चाहिए वियर की और टॉप विड्थ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हाइट हम डिसाइड किससे करते हैं कि हमें डाइवर्जन कितने लेवल पे करना है उससे होगा। हाइड्रोलिक जो लेवल मेंटेन करना है वो तो हमें जो सराउंडिंग आरएल्स हैं जो हमने कंटूर सर्वे किया है उससे बेसिस पे कि हमारा जो कैनाल है वो कैसे ग्रेविटी से फ्लो कर रहा है उसके बेसिस पे हाइट फिक्स होती है, उसकी जो टोटल हाइट है वियर की उसके बेसिस पे फिक्स होगी। लेकिन टॉप विड्थ है, जो बेस विड्थ है और जो स्लोप्स हैं, जो अपस्ट्रीम स्लोप है और डाउनस्ट्रीम स्लोप है, वो डिजाइन के पार्ट उसमें भी होता है। और कंक्रीट कौन सी ग्रेड की यूज करनी है ये हमारी टेक्निकल पॉइंट है जो हम डिसाइड कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारा ये वैल्यूज हम जीसी की जो वैल्यू लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू लेती है आईएस कोड 456 आप यूज कर सकते हो और उससे ये डिजाइन लेते हैं। अब जैसे मैंने अभी अब यहाँ पे मैं एक चीज खत्म हो जाती है हमारी कि हम खोसला थ्योरी को समझ गए हैं कि खोसला थ्योरी में जो फ्लो है वो हम क्या कर रहे हैं, फ्लो को हम ऐसा ले रहे हैं कि सीधा फ्लो नहीं कर रहा, ये नीचे से फ्लो नेट की तरह हो रहा है। तब इसका सोल्यूशन क्या है कि कैसे हम इसका डिजाइन करें, कैसे इस प्रेशर निकालें, जो प्रेशर है डिफरेंट पोजीशंस पे अपलिफ्ट प्रेशर है वो कैसे करें। तो ये जो इक्वेशन दी हुई थी उससे हमें पता चल सकता है कि डिफरेंट लोकेशन पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना है, बट इट इज डिफिकल्ट टू सोल्व इवन दीज इक्वेशंस। तो अभी दूसरा इजी मेथड उसने खोसला ने डॉक्टर खोसला ने बताया, वो इजी मेथड क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि Dr. Khosla has broken the whole structure, the weir into different parts, और उनको उसने बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल यहाँ पे ए बी सी डी या एक्स वाई जेड नहीं है, खोसला's method of independent variable. So variables are not like A, B, C, D or X, Y, Z, but this is variable. This is one structure. This is one structure here. ये क्या स्ट्रक्चर है? ये आपका वियर का फ्लोर है, पक्का फ्लोर, जिसकी लेंथ b है और अपस्ट्रीम में एक पाइल है जिसकी डेप्थ d है। ये एक वेरिएबल मान लिया उसने। दूसरा वेरिएबल क्या माना? ये फ्लोर वही है, सेम फ्लोर है जिसकी अगेन लेंथ b है और डाउनस्ट्रीम में एक पाइल है, डाउनस्ट्रीम में एक पाइल है। तो ये एक सेकंड वेरिएबल है। तो ये क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। हालांकि थिकनेस तो होती है 1 मीटर है या 80 सेंटीमीटर है, फ्लोर की थिकनेस तो उतनी है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने इजी कैलकुलेशन के लिए ये मान लिया कि इसकी फ्लोर की थिकनेस नहीं है, ये केवल लाइन है और अपस्ट्रीम में एक पाइल की लाइन है, क्योंकि पाइल की लाइन लगानी पड़ेगी ना। ये यदि 500 मीटर लंबा वियर है तो एक करके 5 मीटर पे एक लगा हुआ, तो इतने सारे पाइल लगेंगे। तो ये जो लाइन है पाइल की, ये एक अपस्ट्रीम में है और ये है और डाउनस्ट्रीम में। दिस इज वन केस जिसमें हम थिकनेस ऑफ द फ्लोर वी अज्यूम एज नेग्लिजिबल और अपस्ट्रीम में एक पाइल लाइन है या फिर डाउनस्ट्रीम में पाइल की लाइन है। तो ये क्यों एज्यूम किया है इन्होंने, वो स्टेज में देखेंगे, क्योंकि खोसला ने फिर ग्राफ बताए और 2 इक्वेशंस दी, कुछ इक्वेशंस दी जिनसे हमें एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेशर मिल जाता है। तो ये जो E1 लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है और ये D1 लिखा हुआ है, दीज आर जस्ट पॉइंट विच आर हैविंग क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर कौन सा? अपलिफ्ट प्रेशर। तो हमें बेसिकली प्रेशर ही निकालना है, प्रेशर के बेसिस पे ही हमारा फ्लोर थिकनेस निकलेगा। तो यहां से फ्लोर आपका चालू हुआ है तो यहाँ पे तो उतना ही होगा, कितना होगा? H, जितना प्रेशर यहाँ पे हेड है वो 100% हेड रहेगा। यहाँ पे मान लो कि 20% लूज कर दिया तो यहाँ 80% हेड ऑफ दिस H, तो 0.8 H रहेगा। यहाँ पे मान लो 10% और
यहाँ पे हेड लूज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे फ्लो ऐसे टेक प्लेस करता है स्ट्रीम लाइंस के हिसाब से, तो हेड लूज करता रहता है। तो यहाँ पे आते आते मान लो कि और 10% लूज कर दिया, तो यहाँ पे तो 100 था, तो H था टोटल प्रेशर, यहाँ पे 0.8 H निकला, यहाँ पे 0.7 जितना हुआ। और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और पॉइंट्स मिलेंगे, तो डाउनस्ट्रीम में जाएंगे, डाउनस्ट्रीम पाइल पे क्या आ रहा है वही देखो, ये E1 था, यहाँ पे E है, दीज आर जस्ट नोमेनक्लेचर, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ इक्वेशन दी हुई है और बाद में चार्ट्स भी दी हुई है, दिए हुए हैं, वो सिंपली हम इक्वेशन और चार्ट्स को यूज करेंगे तो इनकी वैल्यूज निकल आएगी। तो आपको जस्ट ये मान लेना है कि ये एक सिंप्लीफाइड व्यू है एनालिसिस पर्पज के लिए, क्योंकि जब हम इनको समझने के लिए बैठते हैं तो एक बार में पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते दिमाग में, क्योंकि इन लोगों की तो काफी लंबी स्टडी थी। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ऐसा मान लो। तो ये सी पॉइंट जो लास्ट है, यहाँ पे सी इजिकल टू कितना होना चाहिए, फाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, या हेड की वैल्यू 0 आना चाहिए एग्जिट में, या लेस देन सेफ एग्जिट ग्रेडियंट आना चाहिए। तो सी को हम 0 ही मान लेते हैं, जब भी कैलकुलेशन करते हैं खोसला के ग्राफ से जो चार्ट बनाए हुए हैं, तो सी इजिकल टू 0 ही मान लेते हैं। और यहाँ पे E1 का वैल्यू 100% मान लेते हैं कि 100% जो प्रेशर है, अपलिफ्ट प्रेशर है, एग्जिस्ट कर रहा है और एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और अब क्या है, सेकंड केस क्या ले रहे हैं हम, इंटरमीडिएट एक शीट पाइल है और कहीं नहीं है, देखो थिकनेस भी नहीं है। दूसरा केस क्या है वेरिएबल का, द सेकंड केस बी केस क्या है, इसकी थिकनेस नहीं है, फ्रंट में भी पाइल नहीं है, डाउनस्ट्रीम में भी पाइल नहीं है, लेकिन सेंटर में पाइल है। अब इसमें भी ई सी और डी दिया हुआ है, देखो आपने यहाँ पे भी सी डी C1 D1 E1 ये खोसला के दिए हुए हैं, क्योंकि जब आप खोसला की थियरी पढ़ोगे जो IS कोड में भी दी हुई है और दूसरे इसके स्पेशल पब्लिकेशन भी आए हुए हैं IS कोड के खोसला पे, तो उसमें जब देखते हैं तो ये नोमेनक्लेचर वहां पे दिए हुए हैं। तो ये C1 क्यों लिखा हुआ है, ऐसा दिमाग में प्रेशर मत डालना, ये मान लेना कि उन्होंने पूरी थियरी को समझने के लिए ऐसा नोमेनक्लेचर दिया था। तो ये देखिए CDE C1 D1 E1 CDE, और अब वापस यहाँ पे CDE दे दिया, इट्स ओके, ये सेकंड है, CDE दे दे, इसकी डेप्थ D है, इनकी भी डेप्थ अभी तो D दिखाई हुई है, ठीक है ना। ये जो यहाँ फ्रंट पॉइंट से देखिए, यहाँ फ्रंट पॉइंट से लेके इस जो मिडल इंटरमीडिएट पाइल है, ये जो इंटरमीडिएट पाइल है वहां की डिस्टेंस B1 है, और टोटल जो लेंथ है इस फ्लोर की B1 है, सॉरी B है, और यहाँ पे B1 है। ये कई बार इसको कहते हैं हम B2, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये इसको B2 कहते हैं। और ये हेड H है, ये हेड हमें यहाँ पे लूज करना है ताकि यहाँ पे पाइपिंग नहीं चालू हो, एग्जिट ग्रेडियंट सेफ रहे, ठीक है। अब थर्ड केस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है कि इसमें थिकनेस है, डेप्थ है, फ्लोर की डेप्थ कितनी दिखाई है D खोसला ने इसमें, लेकिन यहाँ पे पाइल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। ये एक इजी वेव हो गया, तो हम इसको एनालाइज करेंगे, प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो खोसला ने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, दो तरीके बताए, दोनों तरीकों में उन्होंने क्या बताया कि सॉरी मैं पीछे जाता हूं, जो खोसला ने ये तरीके बताए कि ये जो डेप्थ है ये तीसरा केस है, तीसरे केस के बाद में डेप्थ की बाद में आगे जाता हूं। ये यहाँ पे हमें प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर कहाँ चाहिए हमें, प्रेशर एग्जैक्ट यहाँ पे 100% है, इतना नीचे फ्लो जाएगा तो कम हो जाएगा, और ऐसे ऐसे आगे जाएगा तो और ऐसा कम हो जाएगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन खोसला's मेथड। लेकिन आगे जाते हैं, पहले पढ़ते हैं थोड़ा, मैं 2-3 स्लाइड और बची है मेरी खोसला थियरी की, मैं न्यूमेरिकल लूंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन ये 2-3 थियरी के पॉइंट्स आपको ले लो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये सीखते हैं हम तो पूरा का पूरा हमें स्ट्रक्चर का डिजाइन समझ में आता है कि स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग हेवी स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसे करना पड़ता है, जिसमें हमारा जजमेंट जो है, हमारा जजमेंट बेस्ड ऑन हमारे स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं, ये होता है। और यदि हम, if we do not have sound knowledge of these theories, we cannot really put up, we cannot understand what is happening inside the software। तो ये चीज है, देखिए अब मैं 2-3 चीजें आप पढ़ लो इसमें से। The residual seepage head uplift pressure at key points, देखो key point is very important, at key points are junctions और जंक्शन पॉइंट्स ऑफ पाइल एंड फ्लो, जो हमने पीछे देखा था ना,
देखो ये जंक्शन पॉइंट मैंने दिखाया था EDC या CDE, ये जंक्शन, पीछे भी ऐसे था E1 C1 D1, ये जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट्स है। ये फ्लोर के साथ है या बॉटम सोइल के साथ है, यही है जंक्शन पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो द रेजिडुअल हेड, सीपेज हेड एट की पॉइंट्स आर जंक्शन पॉइंट्स ऑफ पाइल एंड फ्लोर, बॉटम पॉइंट ऑफ द पाइल एंड बॉटम कॉर्नर्स ऑफ द डिप्रेस्ड फ्लोर। ये जो डिप्रेस्ड फ्लोर है तो इसके इस पॉइंट पे भी हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर खोसला की तरह से। एग्जिट ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते हैं खोसला के। दीज रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ कर्व्स बाय खोसला। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए कि खोसला ने क्या किया, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीन केस दिए, जो कॉम्प्लिकेटेड वियर है उसको तोड़ दिया तीन भागों में, अपस्ट्रीम सीट पाइल, डाउनस्ट्रीम सीट पाइल का एक केस, इंटरमीडिएट सीट पाइल का एक केस, और फ्लोर थिकनेस का तीसरा केस। और उसके बेसिस पे उसने कैलकुलेशन करके हमें बताया कि कैसे होना चाहिए। तो द कर्व्स गिव अस द वैल्यू ऑफ फाई, जो कर्व मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं और आपकी बुक में भी अवेलेबल है, वो कैसे समझे जाए। ज्यादातर स्टूडेंट उसको देख के छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। The curves gives value of phi, the ratio of residual seepage head and total seepage head. phi का मतलब क्या है ये समझ लो आप, क्योंकि phi की एक टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट होगी सारी। रेजिडुअल सीपेज हेड h स्मॉल h और टोटल सीपेज हेड h या h सबस्क्रिप्ट में s, hs या कैपिटल H at key points. The direction for reading the curves are given on the curve itself by Khosla. तो ये जो कर्व है आप इसको देखो, ऐसे तीन कर्व दिए हुए हैं और तीनों हम रीड करेंगे कि कैसे रीड करना है हमें। ये पहला केस है जब इसमें एक अपस्ट्रीम में क्या है, सीट पाइल है, देखो आप ये स्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम में है, ये बी है, इसकी लेंथ है, ये इसमें भी इसकी टोटल लेंथ दिखाई हुई है बी। इसमें वाटर यहाँ पे है, इसमें भी वाटर यहाँ पे है, इसमें हेड H है कैपिटल, इसमें हेड है कैपिटल H, ठीक है ना। इसमें पाइल की डेप्थ है D और इसमें डेप्थ है T। तो अल्फा की वैल्यू होती है B/D, और ये ग्राफ किसमें है, वैल्यूज ऑफ 1/अल्फा, दैट इज B/D नहीं D/B होगा। तो ये आप ग्राफ, डोंट बोदर अबाउट दिस, हमें अल्फा से मतलब है B/D। B इज टोटल लेंथ, D इज द डेप्थ ऑफ द पाइल, ओके। या जो फ्लोर का हमने देखा था यहाँ पे D, ये भी फ्लोर की थिकनेस भी D दिखा रखी है खोसला ने, जो हम T थिकनेस बोल रहे थे पहले। कोई बात नहीं, दिमाग में बना के रखो इन चीजों को, लास्ट में सब एक साथ क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो। और यहाँ पे क्या है, ये फाई क्या है, P/H, P इज द अनबैलेंस्ड स्मॉल h, यहाँ इन्होंने P लिखा है कैपिटल P, ये H इज द टोटल हेड, जो यहाँ पे H है, ये रेजिडुअल हेड, जैसे जैसे जाएगा नीचे तो ये खत्म हो जाएगा, P/H इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके इन्होंने 100 तक कर दिया, तो इंटू 100 कर दिया, तो ये परसेंटेज में P/H की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू है 1/अल्फा, तो B/D नहीं D/B हो गया। तो ये वैल्यू 0 से लेके 1 तक यहाँ पे दिखाई हुई है, अदरवाइज ये टू कन्वर्ट इनटू इन रेंज, क्योंकि B की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी, लेंथ ऑफ द फ्लोर ज्यादा ही होने वाला है। तो इसमें क्या है, ये तीन लाइन खींची हुई है, देखो एक लाइन ये है जिसपे लिखा हुआ है ऐसा phi D डैश, दिस इज phi D एंड दिस इज phi E, ठीक है ना। तो E कहाँ है हमारा पॉइंट, ये है, ये हमारा E पॉइंट है, देखो। तो ये phi E का इक्वेशन जो है, phi E का इक्वेशन क्या है, सॉरी ग्राफ क्या है, यहां से। तो हमारे पास यदि हमारे दिस वैल्यू 1/अल्फा पता है और phi पता है, तो इससे हम सीधा रेजिडुअल हेड निकल जाएगा, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। phi की the chart shows us the values of 1/अल्फा and phi। तो क्या है phi E, देखो ये एक one method of using this to get the values that how much percentage of this P is remaining। तो जैसे मान लो कि B/D है, यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो ये इससे यहाँ पे वैल्यू फॉल करता है, तो ये 60% के करीब होगा। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड phi E का ही देखो आप, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो खोसला ने दो टाइप की चीजें बताई
कि आप दो टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हो. वन इज दीज इक्वेशंस गिवन बाय खोसला एंड सेकंड दीज चार्ट्स गिवन. तो वो हमें न्यूमेरिकल मेथड्स या ग्राफिकल मेथड या इलेक्ट्रिकल एनालॉजी न यूज करके डायरेक्टली हम ये दो चीजें यूज कर सकते हैं. बहुत सिंप्लीफाइड वे है. आपको ये चार्ट्स यूज नहीं करने हैं मान लो किसी डिजाइन में. अभी तो करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं. मैं भी आपको दे सकता हूं एग्जाम में, या यूनिवर्सिटी भी आपको चार्ट अप्लाई कर सकती है. लेकिन आप जब रियल लाइफ में डिजाइन कर रहे हो तो चार्ट नहीं यूज करने, तो फाई की इक्वेशन यूज कर लो. फाई 100 by pi cos inverse delta minus 2 by delta. What is delta? Delta, you know the equation, this 1 plus root of 1 plus alpha square by 2 that we have seen already. ठीक है ना, ये डेल्टा की इक्वेशन. तो ये डेल्टा अल्फा वी नो बी बाई डी, तो ये वैल्यू रखते ही डेल्टा मिलेगा. डेल्टा में कोस इनवर्स की वैल्यू मिलेगी और इसकी आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी कि 70%. तो यहाँ पे जो है या 20%, ई की वैल्यू जो है 20%, तो फाई 20% आएगा. मींस जो आपका रेसिडुअल हेड है यहाँ पे दैट इज 20% ऑफ दैट एच. तो ये सिंपली आपकी ऐसी इक्वेशंस आएगी. तो हमें केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये प्रेशर ही निकालना है. खोसला की थ्योरी इतनी सी है. अब आप समझ में आ रही होगी बात कि हमें देखो, हमने यहाँ पे निकाली थी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इतने ही है. इन्हीं पॉइंट्स पे हमें प्रेशर निकालना है. कितने पॉइंट है? सी डी ई, C1 D1 E1. अभी इसमें भी एट इंटरमीडिएट सी डी ई और यहाँ पे D एंड D डैश, D1 एंड D1 डैश. ये इतना ही कैलकुलेशन करना है हमें और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. और इनको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है. एक खोसला के चार्ट या ग्राफ है, या दूसरे हमारे पास ये इक्वेशंस हैं. और इन इक्वेशंस को हम आप एक बार किताब में जरूर पढ़ लें ताकि आप डिटेल में पढ़ पाए. मैं एक एक नहीं कर सकता, 5 बज रहे हैं अभी, ताकि हम दूसरे ग्राफ, तीसरे ग्राफ और एक न्यूमेरिकल भी कर पाए इस पे. तो अभी मैं दूसरा चार्ट एक बार दिखाता हूं. 2 स्लाइड और बची है अभी केवल. ये इंटरमीडिएट पाइल के लिए है. ये इंटरमीडिएट पाइल के लिए, इसमें भी अल्फा इक्वल टू वही इक्वेशन, डेल्टा का मीनिंग भी वही है. लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या आएगा आपका, एक डेल्टा 1 इंट्रोड्यूस कर दिया. डेल्टा 1 क्या है? दिस B1. अल्फा में क्या है? B by D है. और इसमें क्या है? B1 by D है. B1 is this distance. Alpha, this alpha 1, not the delta 1. This alpha 1, this is B by D. And I'll show you that equation of okay, corrections. I need to go to that level also. This is upstream and downstream, and this is intermediate. Here what we get is additional notations about alpha 1 and alpha 2, delta 1 and delta 2. These two notations are introduced and they are also calculated. तो alpha 1 का क्या मीनिंग है? 1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू, इसमें इस स्लाइड पे है नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम दिखाऊंगा, रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर. ओके, अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है? दिस B1 बाई D एंड B2 बाई D एंड B बाई D इज अल्फा. सिंपल नोटेशन है इसका दोनों का. और ये इक्वेशन हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर आ जाएगा. और ये इक्वेशंस हम यूज करते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2, तो हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2, हाँ यहाँ पे केवल डेल्टा 1 यूज हो रहा है, डेल्टा 2 भी यूज होंगे यहाँ कैलकुलेशन में. ये जो चार्ट है वो चार्ट यूज हो रहा है क्या कैलकुलेट करने के लिए? हमने जो एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू देखी थी 1
h by d 1/π√λ एग्जिट ग्रेडियंट की ये इक्वेशन। तो इसमें ये इक्वेशन पे हम डायरेक्टली जो इसकी वैल्यू है, ये जो इतना वैल्यू है इसका अल्फा जो बी बाई डी रेशियो है उसके साथ रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो ये यहां से हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं 1/π λ की वैल्यू। तो यहाँ पे h हमें पता होता है, d हमें पता होता है, और इसकी वैल्यू यहां करके इसमें रखेंगे तो हमें एग्जिट ग्रेडियंट हमारे स्ट्रक्चर का तुरंत मिल जाएगा। तो ये एग्जिट ग्रेडियंट यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड दिस शुड बी विद इन दिस सेफ एग्जिट ग्रेडियंट लिमिट्स। अभी मैं इंटीग्रेशन का जो 3 करेक्शन अप्लाई करना है, मैं अभी यूज आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा और न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये इंटीग्रेशन में 3 टाइप के इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लोर किया था तो स्ट्रक्चर को 3 भागों में तोड़ा था। तो तोड़ने से क्या, और कैलकुलेशन क्या था, प्रेशर की कैलकुलेशन की थी। वो कैलकुलेशन जो प्रेशर की है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की है, वो कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है, न कि होल स्ट्रक्चर की एज ए मोनोलिथ नहीं है। तो हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। करेक्शन अप्लाई करने के लिए वी come to a point where we can say now our calculations are for the complete structure or for the exact the proposed structure। तो वो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 3 टाइप के करेक्शंस अप्लाई करने पड़ेंगे। ये तीनों टाइप के जो करेक्शंस है आई विल स्टडी डिस्कस विद यू नेक्स्ट टाइम। आप अल्फा 1, अल्फा 2, डेल्टा 1, डेल्टा 2 कैलकुलेशंस और 3 चार्ट थोड़ा सा किताब में अपनी जो कोई भी टेक्स्ट बुक है आपके पास या रेफरेंस बुक है या जो मैंने भेजी थी नोट्स में, ये जरूर एक बार देखें, ताकि हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम इजी से एक सोल्ड एग्जांपल लेंगे जिससे वो समझने में इजी हो जाए। ओके, सो आई कम बैक टू यू।